Assalamu alaikum and a very good afternoon everyone. Before my speech I requested them to show you this video. Already it was very much viral and everyone almost have watched this. That's why the reason it is told that the teachers are like a candle. They burn themselves to enlighten others. So here rest of the professionals, they were known by the designation, but the teacher is very rarely known. And it is told that teaching is the mother of all other professions. The reason is very pretty clear over here. Now, everyone present over here, Dr. Azad Saab, all the esteemed faculty members, and the beloved trainee friends. First of all, I would like to wish the newcomers who have opted our college to get the most desired degree and the most essential degree, the B.Ed degree. Is it most desired or it is most essential? Who are the newcomers here? Newcomers? Okay, very good. It is desired or most essential? What one? Which one? Desired, not essential. Honestly, अगर हम लोग पूछे, honestly, to be very honest with yourself, how many of you have come here to do the B.Ed degree, not to appear the TET and get a government job, but to enrich your resume? कितने लोग ये नौकरी के लिए नहीं आए हो, B.Ed डिग्री लेने के लिए यहाँ पे आए हो? नौकरी के लिए कितने लोग आए हो? Honestly, to be very honest with yourself. सबके सब जो नहीं बता रहे झूठ है, isn't it? That's what we are here. कि without your B.Ed degree, you are not going to get a government job in teaching profession. Yes or no? That is the only essential thing. मजबूरी में हम लोग सब यहाँ पे आए हैं. हम लोग पैशन से नहीं, मजबूरी में आना पड़ा. तो मजबूरी में जब आए गए तो उसको ढंग से करने के लिए कोशिश करो, isn't it? उसको थोड़ा ढंग से करने के लिए कोशिश करो. Today is a very special day in your life. The reason being, you are going to undertake a new assignment in your life, and this is not a very easy assignment. Already our Jaman sir displayed the things that how hectic it is going to be for you. These 2 years, one the biggest mistake you have committed is what? Those who have taken admission here, one the biggest mistake you have committed over here is that क्या कौन सा बड़ा मिस्टेक करके आए हैं? ये कॉलेज को पसंद करना. नींद चैन सब कुछ क्या करेंगे? छीन लेंगे ये लोग. ताली बजाओ, आगे पता चलेगा. ऐसे बजाएंगे कि पहले तो रुएंगे और बाद में बच्चों को रुलाएंगे. Whatever may be, when you take up a new assignment, see जब हम लोगों ने आए गए तो हम लोगों को इसका बारे में पता होना चाहिए. So in life, when you will be going to take a new assignment, one very important and essential thing is that you need to know 3 things. You need to know 3 things. This is a very special day in your life. You have taken up such a big assignment, so you must know 3 things. First, why. Second, what. And third, how. ये 3 चीज हम लोगों को क्लियर करना जरूरी है. कोई भी चीज में कामयाब होने के लिए the most essential and the first important criteria is the clarity of the thing. Is the clarity of the thing. समझ रहे हो? ये थोड़ा मैं ऊपर बात कर रहा हूँ. The first and the foremost essential thing is that the clarity of the thing. ठीक है? एक आदमी जा रहा था, एक सर्कुल होता है ना, जो 3 आली 4 आली ऐसा जो बोलते हैं ना, पॉइंट पे आके खड़ा हुआ. किसी को पूछा, भाई मैं किस तरफ जाऊं? तो बोला किधर जाना है? बोले पता नहीं. तो किसी भी चले जा, किसी रास्ते पे चले जा. तो जब क्लैरिटी नहीं होगा
that you should not have a defined way. कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. So the most important thing is the clarity of the thing. Today we have come here to do a 2-year degree, 2-year professional degree course. This is called teacher training program. So this teacher training program is what? What is it? इससे पहले what is it समझने से पहले मैं यहाँ क्यों हूँ जो फास्ट वीडियो में दिखाया गया, मैं यहाँ क्यों हूँ. सेकंड, what मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एंड हाउ मुझे इस डिग्री को कैसे परस्यू करना पड़ेगा. ये तीन चीज जब क्लियर होगा, सो योर persuasion of BA degree will become meaningful. And so हर चीजों में पहले अपने आप को लोग कामयाब बहुत कम लोग होते हैं. The reason being, लोग अपने आप को पूछते नहीं मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, why I am here, what is the reason that I am going to do it, and how I will be going to do it. So the first question when you take up an assignment is that you have to ask yourself why I have to do this, why I am here, why me. You have to we have to question yourself. It is easy to question others, it is very difficult to question yourself. When you question yourself, you get the clarity. You get the clarity. So the first and most important thing is that you have to question yourself why I am here. I am here to get a degree so that I can avail a government job, or I am here to make myself more efficient, more capable for my passion, the teaching profession. Got my point? Have you got it clarity? हम लोग आगे, ये very honest confession is that हम लोग यहाँ पे आए हैं कि 2 साल की हम लोगों को डिग्री नहीं होने से I cannot appear TET and I cannot become eligible for a teaching profession. गवर्नमेंट ने मना कर दिए. So I am here. धक्का खाके मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ. ना जब मुझे 2 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, so I need to get that clarity of the thing. What is the clarity? The first thing that you want to question yourself, मैं सिर्फ डिग्री के लिए आई हूँ या आया हूँ, या मुझे टीचिंग को सीख के जाने के लिए मुझे आना पड़ा. The first. The second thing, what मुझे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, already been displayed and communicated very clearly to all of you. इस BEd कॉलेज में क्या करवाया जाता है. You should not bother yourself what is done in other BEd colleges, because we have a very clear intention in mind. We want quality teachers, and the quality teachers can build the society, can build the nation. So what you are going to do here is been explained. How that also been covered, how you are to pursue this course. So keeping this thing in mind, we have started this BEd coaching program or the BEd training program here. And one very important clarity is that it is not a 2-year course. It is not a 2-year course. It is a training program. And there is a difference in pursuing a degree and or you have to undergo a training program. Training is related to a very specific thing. Training is related to a very specific thing. What is that? Training एक चीज के साथ जुड़ा होता है. What is that? जी बताओ सीनियर वाले. ट्रेनिंग एक चीज के साथ होता है. मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा. क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा? क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा? हाँ, मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा. क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा? ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू स्किल. ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू ए स्किल. मुझे एक स्किल सिखाया जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर. फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं. सो इफ आई अंडरगो ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, it will be related to management skills. You are undergoing a training program for what? For what? For learning teaching
teaching skills, to obtain the teaching skills. What is skill then? What is skill? Skill is what? Skill is what? To learn from the books. Skill बुक से सिखाया जाता है क्या? हाँ, हम लोग स्किल ऐसे समझते हैं जैसे फैन को ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्किल. दैट पर्सन हैड दैट स्किल कि वो प्रैक्टिकली आके ये चीज को कैसे करना पड़ता है, he knows it well, he can do that. So training is acting upon a particular activity, how to do it. जनरल एजुकेशन में व्हाट को ज्यादा सिखाया जाता है, इसका डेफिनेशन लिखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ये लिखो, वो लिखो, दैट थिंग व्हाट इज टोल्ड. ट्रेनिंग में हाउ को सिखाया जाता है, कैसे करना है. सो ये डिग्री प्रोग्राम में हम लोगों ने कितना पेपर्स लिख के, कितना परसेंटेज लाके, कितना रीच मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके यहां से जाएंगे, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट तुमने ये स्किल का ऊपर कितना माहिर होके जा रहे, हाउ एफिशिएंट यू आर इन दैट स्किल, हाउ एफिशिएंट यू आर इन दैट स्किल. और एफिशिएंसी में दो चीज होता है, एक एटीट्यूड और दूसरा एप्टीट्यूड. एटीट्यूड तुम्हारा ये करने का माइंडसेट है क्या, ये करने के लिए तुम्हारा माइंडसेट है क्या, और उसको कैसे करना है ये तुम्हें आता है क्या. ये दो चीज जब होगा then you can make yourself very much excellent in doing that particular skill. तो इसीलिए the very first day this particular induction program, they have induction is that you are to adjust yourself to this particular situation. कि इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, तुम लोगों को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा. These are the things to be told. So the very purpose of this particular program is that you need to know the objective of the program. You need to know the objective of the program. 2 साल कैसे बिताएंगे, गाली खा करके बिताएंगे, नींद हराम कर करके बिताएंगे, स्ट्रगल कर करके बिताएंगे, या खुशी से बिताएंगे. सेकेंड ईयर वाले खुशी से बड़ा खुश लगते हो, आंसू नहीं निकल रहा है और खुश लगते हैं, जीना आराम करके रख दी लोगों ने. उस दिन हमारे प्रिंसिपल मीट में ये हमारे डिग्री कॉलेजेस का जो एडवाइजर है हमारे अमरजीत सिंह सर ने बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिए थे. बोले थे पहाड़ी के ऊपर विजिटर्स जा रहे, तो एक औरत ने अपने बच्चे को उठा पे उठा के लेके जा रही थी, और साथ में और एक आदमी जा रहा था, उससे बैग लेके जा रहा था. तो वो बैग लेके जो ऊपर चढ़ रहा था तो बार बार उसको बैग को रखने बैठना पड़ रहा था, रेस्ट लेके जा रहा है. और उसने देखा इस औरत ने बैग से ज्यादा भारी बच्चे को गोद में लेके आराम से जा रही है, कभी भी रुकना नहीं पड़ा. बेचारा परेशान हो गया, मैं ये बैग उठा के लेके जा नहीं पा रहा हूँ और वो बच्चे को उठा के आराम से जा रही है. तो जब ऊपर पहुंचे वो जाके बोला मैं ये बैग लेके ऊपर नहीं आ पा रहा था, बार बार मुझे रुकना पड़ा, और तुमने आराम से कभी बगैर रुकते हुए आ गई ऊपर, कैसे हुआ पॉसिबल. बोले सर आप तो एक बोझ लेके आ रहे थे और मैंने एक प्यार लेके आ रहा था, मैंने एक प्यार लेके आ रहा था और आपने बोझ लेके आ रहे थे, आपको एक भारी सामान उठा के आ रहे थे तो आपको भारी लग रहा था, और मैंने प्यार को उठा के लेके आ रही थी तो मैंने आराम से खुशी से आ रहा था. तो चॉइस इज योर्स. 2 साल बोझ उठाओगे या प्यार के लेके चलोगे. प्यार इस कैसा होगा, when you will have the passion for the job, you will have the passion for the profession. ये टीचिंग को, प्रोफेशन को, अगर प्रोफेशन के साथ तुम पैशनेट नहीं हो, वो फर्स्ट वीडियो में दिखा गया लड़की ने सब चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार है. द रीजन बीइंग शी हैज बिकम पैशनेट फॉर दैट. अब वो पैशनेट
होने का रिजल्ट क्या है सेकंड वीडियो में क्या है। तो जब तक पैशनेट नहीं हो गए चीज भारी लगेगा, इट विल बिकम वेरी हैवी फॉर यू टू कैरी ऑन। और जब उसके साथ अपने आप को एकदम पूरा मतलब वहां पे यू डेडिकेट योरसेल्फ, आराम से खुशी से कर पाओगे। सो आवर पर्पस ऑफ कमिंग हियर इज दैट कि हम लोगों को स्किल सीखना है। और स्किल कब सीखते हैं? जब हम लोग अपने आप को वहां इन्वॉल्व करते हैं। विदाउट इन्वॉल्वमेंट स्किल नहीं होता। क्लासरूम में जो टीचर इन्वॉल्व करवाते हैं वो बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं, और जो दूर से लेक्चर मार के चले जाते हैं उससे कोई स्किल सिखाया नहीं जाता है, थ्योरी सिखा के हम लोग चले जाते हैं। स्किल सिखाने के लिए इन हैंड एक्सपीरियंस दिलाना पड़ेगा, इन हैंड एक्सपीरियंस दिलाना पड़ेगा। तो आज जब ये इंडक्शन प्रोग्राम है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव को नहीं समझोगे तो ये होगा एक जोक बनाया गया था मिल्खा सिंह के ऊपर। जो मिल्खा सिंह बहुत भागते थे, तो उनका घर के बाजू में एक दिन एक घर में चोर घुस गया था। तो जब लोगों को पता चला चोर घुस गया, सबने चिल्लाने लगा चोर चोर। तो चोर भागने लगा और मिल्खा सिंह सुन के वो पीछे पीछे भागने लगा। चोर बहुत तेज भाग रहा था, मिल्खा सिंह को गुस्सा आ गया, वो भी इतना तेज भागे चोर के बहुत आगे चले गए। तो लोग पूछे भाई चोर कहाँ है? बोले चोर मेरा साथ भागेगा, वो पीछे है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करने जाते हैं, पर्पस को पीछे छोड़ के बहुत आगे चले जाते हैं। और चलने का हमारा हाथ में होता है इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल लेके हम लोग बहुत आगे, पर्पस बहुत पीछे होता है, हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं। ये पर्पस को लेके हम लोग यहाँ पे अगर चलेंगे, प्रोफेशन के साथ पैशन को लेके हम लोग चलेंगे, तो ये 2 साल का कोर्स बड़ा कम पड़ेगा। लगेगा मैंने और भी सीखना चाहिए था, लगेगा मुझे और भी सीखना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोफेशन जितना भी हम लोग कहे किसी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। एक टीचर का रोल क्या होता है पूरा 2 साल इसमें कहा जाएगा, लेकिन इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बीएड में एक्चुअली क्या सिखाया जाता है, क्या होते हैं। मैं भी एक टीचर होके मेरा प्रोफेशन शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि बच्चों के फीडबैक में मैं अच्छा पढ़ाता था। तो मेरा फ्रेंड ने बीएड कर रहे थे, मुझे उस टाइम पे क्वेश्चन आया, बीएड करके मुझे अच्छा पढ़ाना है, अभी तो मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, स्कूल में हूँ, सब ज्यादा बच्चे मुझे चाहते हैं, मुझे मतलब जो फीडबैक होता है उसमें आगे रखते हैं, तो मैं पढ़ाने में बाकी सबसे जब अच्छा हूँ तो मुझे बीएड की क्यों जरूरत है। तो मेरा एक टीचर ने इंसिस्ट कर लिया तुझे बीएड करना है, तो उनका जबरदस्ती से मैंने बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने पढ़ा रहा था, मेरा जो सर है ना, पढ़ाने में मेरा सर नहीं था, मैं दिल से पढ़ा रहा था। अभी दिल के साथ मेरा सर मतलब ब्रेन ये हो गया, अटैच हो गया, और मैं दिल से और दिमाग से दोनों चीजों से मुझे पढ़ाना आते हैं। सो ये जो चीज है बीएड, ऐसा लगता है कि इट्स एन एडिशनल रिक्वायरमेंट, लेकिन जब बीएड अकॉम्प्लिशमेंट होगा, अगर ऑनेस्टली किसी ने अपने आप को डिवोट करेंगे तब पता चलेगा हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड इफ यू लाइक टू परस्यू द टीचिंग प्रोफेशन। तो इसीलिए do not take it as an additional requirement for your profession, take it as an essential requirement for your profession. You will enjoy it, you will love it, and you will come out as an entirely a different person, because teaching is not everybody's cup of tea. Why that we need to know one particular Swami Vivekananda's quotation. We want that education by which character is formed,
strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. चार चीजें ये डेफिनेशन में बताया गया. By we want that education by character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. अपने पैर पर खड़ा हो सकता है. आज एजुकेशन लेके सबसे ज्यादा बेकार है. एजुकेशन अपने आप को इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन ने हम लोगों को अपने पैर पर खड़ा होने को सिखाता है और हमारे बेकार बनाने में, बेकार अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब दो चीज होता है. इधर आई एम नॉट कैपेबल और आई एम नॉट well enough to do the handle the job. So मैंने पढ़ के सीख के मैंने अपने आप को बेकार बना दिया. I am not capable to do a job. आज इंजीनियरिंग डिग्री लेके 15% बच्चे भी, जो एक स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशन होता है, 15% बच्चे एलिजिबल नहीं होते इंजीनियर होने के लिए. 15% बच्चे, 85% आर नॉट एलिजिबल आफ्टर द डिग्री. एक बीटेक बीई होने के बाद he is not eligible to become an engineer. So ये कैसे हो रहा है? It is only because of the system in place. तो ये जिस टीचर को ध्यान देना है कि मैं कैसा टीचिंग दूंगा, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा कि हमारे 80%, 90%, 95% बच्चे जाके बेकार हो जाएंगे. सिर्फ 1, 2, 3 up to 5% बच्चों को कोई ना कोई काम मिलेगा. तो ये जो चीज है, इसीलिए यहाँ पे जो वीडियोस दिखाया गया है, it entirely depend upon the question mark on one particular thing, whether you are passionate of your job or not. आपको इस काम करने में आप में पैशनेट हो या नहीं, what is the level of your passion for the job, ये आपको सिखाता है. हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस चला रहे हैं, उसमें एक प्रोग्राम जो सुपर 40 के बारे में सबने सुने होंगे. सुपर 40 has become a very huge image for Ajmal Foundation. Why? कि यहाँ पे सक्सेस रेट ऐसे बढ़ाया जाता है. The root cause of the success of Super 40 is none other but the teachers. जो वहाँ पे टीचर्स है, सुपर 40 में जो टीचर है वो दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा के आए हैं, जहाँ पे उनको सब बोलते हैं सर वहाँ पे तो हम लोगों ने 8 बजे से 5 बजे तक या 9 बजे से 6 बजे तक हम लोगों को इतना क्लास दिया जाता है, उस क्लास को वो लोग जैसे चाहते हैं ऐसे पढ़ाना पड़ता है. लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों को कुछ कहा नहीं जाता है. हमारा क्लास है लेकिन ऑलमोस्ट 24 आवर्स we remain busy with the kids and we enjoy it. The biggest thing is that we enjoy it. वहाँ पे हम लोग कर रहे थे, we were not enjoying that, but यहाँ पे हम लोगों ने enjoy कर रहे हैं. और जब हमारे बच्चों के सामने एक सुपर 40 का टीचर स्टेज पर चढ़ते हैं, उसको एक सेलिब्रिटी से ज्यादा बच्चों ने चीयर्स करते हैं. एक सेलिब्रिटी से ज्यादा ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी आके उनका सामने खड़ा है, ऐसे चेयर करते हैं. दैट इज द बिगेस्ट रिटर्न ऑफ दिस प्रोफेशन. जो बच्चे आपको चेयर्स करेंगे, बच्चे आपको मानेंगे द मेन बिहाइंड बाय माय सक्सेस, तब जाके ये होगा. और इट इज बिकॉज ऑफ प्रोफेशन. आज हमारे सुपर 40 के टीचर्स, बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास करने में मना कर दिया. टीचर ने बोला और एक क्लास कर लो, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है. नहीं मान रहे थे. लेकिन क्या करने से तुम लोग करोगे? तो बोला सर आप अगर सिंगाड़ा खिलाएंगे तो करेंगे. टीचर ने भेजा लड़के को, बाजार से सिंगाड़ा चाय लाए
उन लोगों को खिलाया, फिर जाके टीचर क्लास लिया है। बोथ वे आर हैप्पी विद द प्रोफेशन। और हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट में लॉकडाउन, इट वाज सो सरप्राइजिंग एंड ट्रबलिंग थिंग फॉर अस। लॉकडाउन गया, टीचर घर में थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। 3 महीने के लिए कॉलेज खुले, 3 महीने के लिए आए टीचर, 1.5-2 साल घर में रहते हुए सैलरी मिला। ऑनलाइन क्लासेस जैसे तैसे ले लिया। जब आए सिर्फ 3 महीना था बच्चों का एग्जाम के लिए, और उसमें हमारा एक रूल है, एक टीचर को ईयरली इतना लीव मिलता है। सब टीचर ने हिसाब करने लगा, रैंडम लीव लेने लगे, पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं बचा। सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट फॉर द प्रोफेशन। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, सिंपल ह्यूमन बीइंग होके टीचिंग प्रोफेशन को अपना के आपने सिर्फ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि मैं 1.5 साल घर में रह के आपके सिर्फ 3 महीने इन बच्चों को मिला है, 3 महीने में मुझे क्या करना है, उसमें टीचर्स में कंपटीशन लग गया कि किसको कितना लीव लेना है, क्योंकि मेरा लीव 12 लीव है, 16 लीव है, ये बेकार जा रहा है। दैट इज द मेंटेलिटी, माइंडसेट। आज हमारे कॉलेजेस से जहां पे एक टीचर को 40,000 सैलरी मिल रहा है, वो जॉब को अच्छा, सिर्फ सैलरी नहीं, टीचर नहीं, एक अच्छा पोजीशन दिया गया, वहां से जाके दूसरा इंस्टीट्यूट में सरकारी नौकरी ले रहा है 29,000 में। एक टीचर को हम लोगों ने 60,000 ऑफर किया था, जनरल टीचर को 60,000 ऑफर किया, उसका फैमिली ने नहीं माने, वो खुद नहीं माने, जाके 29,000 समथिंग का जॉब ले, लेस देन हाफ ऑफ द इमोलमेंट्स। क्यों लिया? क्यों लिया? क्यों लिया? यहाँ पे अजमल में ज्यादा पढ़ाना पड़ता है और वहां पे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बिंदास रहूंगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ मैसेज आएगा, टक मनी एंटर्ड। कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, कोई मुझे पूछेंगे नहीं क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहां पे कोर्स है, बच्चों का रिजल्ट क्या है। नोबडी इज देयर टू आस्क मी क्वेश्चन। और इसके बाद भी मेरा जॉब पूरे का पूरा 100% सिक्योर्ड है। दिस इज द माइंडसेट। और हम लोग क्या, बच्चों का जिंदगी बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा जिंदगी? आज सब सरकार को दोष देते हैं, हमारे को। अच्छा, पहले स्कूल में कम सैलरी था, आज स्कूल टीचर्स को बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। कॉलेज टीचर्स, हर किसी का सैलरी लाखों के ऊपर है, और सबसे कम अगर पढ़ाया जाता है तो कॉलेजेस में। तो कैसे? एवरीबॉडी, सबको पूछो, नहीं समाज को बनाना है, समाज को बनाना है, और अपने आप क्या काम कर रहे हो, नहीं मुझे छोड़ो, बाकी वालों को बात बताओ। So this is the reality of our society. So our purpose of this particular program is that we must know the one thing is that skill, that how to do it, and at the same time developing the mindset that how much I am passionate for the job. So if you can develop these two things in you in this 2 years time, a very strong mindset for the profession, a good attitude for the profession, and at the same time very strong skill how to deliver these things, then you are going to be a perfect teacher, the way it is being depicted over here. So I hope that our college, particularly our trustees, they are very much concerned of the quality of the teaching everywhere, and that's why we have come up with teacher training program, and that's why we have got such very eligible team of faculties, those who are dedicated to the profession, and everyone is after every particular student, so that you can become an ideal teacher and can do your part, you can deliver your contribution for the development of the society. So with this particular mindset, with this particular expectation, with this particular anticipation, this B.Ed college or the teacher training program been undertaken under the banner of Ajmal Foundation, and I hope that in 2 years time
you do not cage yourself that I am just caged over here, I cannot have my own world. Make this college, make this environment your own world. Love it, enjoy it, and develop yourself to the best possible manner. You are going to be a contributory factor for the society. That is what is the very purpose of this particular college. I hope that you will love it, you will enjoy it, and you will become passionate. And we are going to get an ideal teacher in the form of you, who is going to bring a change in the society and a change in the life of the student. With this anticipation, I conclude. Thank you so very much.